Assalamu alaikum, students. How are you? Hope you will be fine. Now, today I'm going to start some important questions of paper one of O level 4204024. So, mid-year going to start from the 4th of December or maybe 8th of December, but uh, s- we are going to start some important questions regarding paper one, right? So I'm going to share my screen and please uh, watch this video very carefully and solve the questions step by step so we can solve the questions according to uh, marking scheme. Right. So the first of all, the one questions that is regarding to statistics, scatter diagram. So the first of all, write down the type of correlation that scatter diagram shows. When a scatter diagram shows the all points regarding the positive gradient, like this type of gradient is a positive gradient. So this relation is called positive. So you have to write positive. The second, draw the line of best fit. So you have tried to join the maximum point or draw the line which passing through near all the points. Okay. So if we are going to draw this one, so we can use the line. So this is the straight line. So we can draw the line like this. 1, 2, 3, 4 points. 1, 2, 3, 4 points. So I think this will be the best line of fit, best fit of the line like this. Okay, or it's a maybe you can change the color and or it's maybe like it's so this is also the uh, best fit. So the maximum point is running like a blue line. This is nearest to this one or this one. You can take only any one point or any one uh, line of best fit. Okay. So I'm going to erase one. That is red one. So this is the line of best fit. The third one, use your line to best fit to estimate the time when walk for 5 kilometers. So 5 kilometers means this is the 5 kilometers. Again, I'm taking the line. This is the 5 kilometer like this one. And then according to this line, we have the point like around 60. So this is equal to 60 minutes. 60 minutes. So change span 60 minutes. This is the line of according to line of best fit. Okay. So boys, if we have a points like this will be positive gradient. If we have a point like this one, so this will be negative. So if your point is like this, that you have to write the negative correlations, then you have to draw the line of best fit. And then according to line of best fit, you have to give the answer of the given questions. So this is in this condition, we have 60 minutes, or you can say 59 minutes around, right? So the next one. Okay.
Okay, beta. Now, in this case, the three lines and our shaded region are shown on a 1 centimeter square grid. This is the 1 centimeter square grid. So equation line number one, line number one. I'm going to erase all this one. So this is the line number one. And this is the line number two. And this is the line number three. These three lines are uh, capture the shaded region, or you can say three line and a shaded region are shown in the graph. To find three inequalities that define the shaded region. So line number one, this will be line number one. So line number one, that is equal to y equal to -2. Y equal to -2, or shaded region is above the line, so we can write y greater than equal to -2. So first line will be y greater than equal to -2. If region is above the line, so we have to put y greater than, or this is solid line, so that is y equal to, y greater than equal to 2. Line, a shaded region above the line, that is why we put greater than equal to, equal -2. Now line number two, the line passing through 5 to 5. This is the shortcut method. You can write this x plus y equal to 5. X plus y equal to 5. If line passes through the 5 on the y-axis as well as 5 on the x-axis, then we can write x plus y equal to 5. If line passing through the 2, then you can write x plus y equal to 2. So shaded region is below the line. That is why we have to write x plus y less than equal to 5. The shaded region is below the line, so we can write below the line, so we have to write less than equal to. Sorry, this is the less than equal to. Shaded region is below the line, so we have to write less than equal to 2. Less than equal to 2 if shaded region is below the line. Right? So second line L2, that is equal to x plus y less than equal to 5. Right? Now third one, the third line, this is the line number 3. This is equivalent equation y equal to 2x. Line number 3, that is equal to L3. Y equal to 2x minus 1. 2x minus 1. So the region is below the this is the line, and we have shaded region below the line. So we have to put y less than equal to 2x minus 1. So third equation, third inequality is 2x minus 1, y less than equal to 2x minus 1. So these are the three inequalities. Right? Now, another region R is defined by these three inequalities, x plus y less than equal to 5. It means I'm going to change the shade of the color. So less than equal to 5, it means the required region is below the line, this one. Right? So these are the below the line. And this is the line, and the required region is below the line, right? Keep it in your mind. This is the below the line. And then y greater than 2x minus 1. 2x minus 1 is this line. So required region is above the line, like this one, above the line. So this is the above the line. And third one, x greater than equal to 1. X greater than equal to 1.
this is the x greater x equal to 1. So greater than 1 means the region right side of the 1, like this. So normally we tried, when we solve this type of questions, we shade opposite side, opposite region. If we required less than equal to 5, तो we have to shade greater than equal to 5, ताकि हम जो है वो एक अनशेडेड रीजन गेट कर सकें और फिर हम उसे शेड कर सकें। ठीक है, तो मैं इससे पहले जो है अनशेड कर रहा हूं, देन वी हैव टू शेड द रीजन। तो x लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब है हमें चाहिए रीजन नीचे बिलो द लाइन, लेकिन मैं इसको शेड कर रहा हूं अबव द लाइन। आपको समझाने के लिए इसको अबव द लाइन मैंने शेड किया, ऑपोजिट रीजन, ताकि हमें जो रिक्वायर्ड रीजन मिले वो आपके पास अनशेडेड हो। y ग्रेटर देन 2x-1, 2x-1 इसका मतलब है मुझे ऊपर वाला रीजन चाहिए। तो ऊपर वाला रीजन चाहिए तो मैं इसको ऑपोजिट बिलो द रीजन में शेड कर रहा हूँ ये। नाउ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आपके पास लाइन है x ग्रेटर देन इक्वल 1। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि ये हमें क्लियरली शो करे। ये मेरे पास ये लाइन है x इक्वल टू 1, और मुझे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए, मुझे इस तरफ वाला रीजन चाहिए, तो मैं जो इसको शेड करूंगा ऑपोजिट साइड पे ये। ठीक है, अब जो अनशेडेड रीजन आपको दिख रहा है, वो अनशेडेड रीजन जो है वो हमारे पास, ये मैं पर्पल से कर रहा हूँ, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन जिसे मैं पर्पल से शेड कर रहा हूँ, दिस वन, ये। और बाकी जो रीजन्स हैं, अगर आप चाहें तो इसको आप इसको इरेज कर दें। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रीजन आर, दिस वन। इफ यू वांट टू चेंज द कलर, आप इसे शेड करके इसे पेंसिल से आपने आर लिखना है इसमें, दिस इज आर, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, राइट। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो दिस इज द, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो फिर हमारी लाइन ये वाली आती, और फिर हम इस पूरे को शेड करते हैं। शायद मार्किंग स्कीम में कुछ ऐसा ही है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाई मिस्टेक है, तो फिर ये, लेकिन यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। सो वी हैव टू, रिक्वायर्ड रीजन इज दिस वन। ये हमारा पास रिक्वायर्ड रीजन है, इसे मैंने ये शेड किया है। बाकी ये सारे जो है, ये अगर इस केस में होता तो फिर हम इसे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो फिर हम यहाँ से लेते हैं, राइट। तो ये आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन है, इट्स वेरी सिंपल। इसे अपने माइंड में रखिएगा। इफ रीजन इज below the line, we have to put less than equal to. If region, required region greater than, above the line, greater than equal to. If we have only less than or greater than, we have to use dotted or broken line. Got it? Now, the next question, this is also very important. So you have to erase or this thing, ताकि हम इसको वर्किंग कर सकें। इसमें भी कोई ऑप्शन मौजूद है, क्लियर ऑल ड्राइंग, राइट। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं आपसे, द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर पार्ट ऑफ अ कार जर्नी, कार जर्नी। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ जो आपके पास है, वो वाई एक्सिस पे हमारे पास स्पीड है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम है। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। जब हम स्पीड टाइम ग्राफ को सॉल्व कर रहे होते हैं
तो ऐसी कंडीशंस में ग्राफ अंडर दी कर्व और ग्राफ अंडर दी लाइन जो आपके पास जो है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के लिए हम जो है वो जो हमारे पास कॉमन शेप है ट्रेपीजियम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, और रेक्टेंगल उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ट्राइंगल उसका फॉर्मूला यूज करते सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार के लिए हम जो है दो शेप यूज करेंगे, एक ट्रेपीजियम यूज कर लेते हैं और एक रेक्टेंगल यूज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा है, एक पैरेलल साइड आपके पास ये है, एक पैरेलल साइड आपके पास ये है, 20 तक इसके डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक ये 14 है, ये सम ऑफ पैरेलल साइड है। यानी हम लिख सकते हैं 20 प्लस 14, दिस इज द सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और इस कंडीशन में जो हाइट है वो ये आपके पास जो लेंथ है दिस इज द हाइट दैट इज 100, सो 1/2 इंटू 100, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 34, 2 1 ज़ा 2, 250 ज़ा 34। अच्छा ये तो हमारे पास एक ट्रेपीजियम आया, प्लस प्लस वी हैव अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 50, 100 प्लस 50 इंटू 4, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इंटू बी। तो हम इसको लिख सकते हैं लेंथ आपके पास है 50 और विड्थ जो है वो या ब्रेथ जो है 14 है। ठीक है, तो प्लस 14 5 ज़ा 70 और एक ज़ीरो लगा दे 700, इसको भी जब इसकी वर्किंग करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 का ज़ीरो, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, और एक ज़ीरो और ये ऐड करेंगे 50 का, तो 15 1700 प्लस 700, 17 प्लस 7 इक्वल टू 24 और 2 ज़ीरो और लगा दें तो 24। डिस्टेंस जो है वो मीटर स्पीड मीटर पर सेकंड में है, सो डिस्टेंस विल बी 2400 मीटर। तो ये 2 मार्क्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें कोई पार्ट्स मौजूद नहीं है। सो ये आपके पास है 2400 मीटर्स, राइट। सो अगेन नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें भी आपके पास ये वी हैव टू इरेज ऑल ड्राइंग। ये एक फंक्शन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। यू हैव टू फाइंड द इनवर्स फंक्शंस एज वेल एज सेकेंड पार्ट जो है डोमेन, एज अ डोमेन हम x+5 पुट करेंगे। सो इनवर्स फंक्शन पहले निकालते हैं, इनवर्स फंक्शन किसका है, f का इनवर्स निकालना है हमें। सो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि गिवन फंक्शन लेट y इक्वल टू f(x) और y इक्वल टू फंक्शन किसके इक्वल है 2 - 3x। x को सब्जेक्ट बना लें। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप वी हैव टू अप्लाई 3 स्टेप्स। वन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू सपोज y इक्वल टू गिवन फंक्शन y इक्वल टू 2 - 3x। then in the second step you have to make x the subject of the equation। so 3x को हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल टू 2, और इस y को शिफ्ट कर दे राइट हैंड साइड पे, दिस इज -y, और x इक्वल टू 2 - y/3। ठीक है, तो वेरी शॉर्टकट वी हैव टू रिप्लेस x, रिप्लेस दिस x इनटू f इनवर्स x। इसे हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ आपको y दिखे उसे भी x में कन्वर्ट कर लें। सो योर आंसर इज 2 - x/3, 2 -
x/3। ठीक है, तो ये आपके पास जो है नॉर्मली एक शॉर्टकट भी हम यूज़ करते हैं, 2 - 3x है, और इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1, तो 1 और 3 को स्वैप करेंगे। ठीक है, और इसके साथ जो है हमारे पास जो है 1 और 3 स्वैप हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक अगर नहीं की है तो एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं। तो y को जब इधर शिफ्ट किया माइनस, ये इधर आके +3x हो गया, और उसके बाद जो है x = 2 - y/3, और जहाँ जहाँ y उसको हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये 2 - x/3 है। शॉर्टकट के उसमें ना जाएं, अगर प्रॉपर स्टेप से वो करें ताकि 2 नंबर आपको पूरे मिले। तो फंक्शन से नॉर्मली इनवर्स फंक्शन जो है वो 2 मार्क्स का ही आता है। अब आ जाए इस फंक्शन में, जो डोमेन है वो x+5 है, तो आपने क्या करना है कि एफ ऑफ जो फंक्शन हमारे पास है 2x, f(x) = 2 - 3x है, तो इसकी जगह आपने क्या पुट करना है, इसको जगह हमने पुट करना है x-5, x+5। सो x+5 = 2 - 3x+5। x+5 के साथ जो है अब आपने क्या करना है, इसको इसको सिर्फ एक्सपेंड करना है। 2 - 3x माइनस प्लस माइनस 5 3 = 15। सो 15 - 2 दैट इज इक्वल टू -13 -3x। तो ये आपके पास निकल आया x+5। मैंने पहले ही बताया आपको कि जब भी आप सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये नहीं कि आपने x+5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया या इसको भी आपने कैलकुलेशन में, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया। अब आ जाएं 3gx, तो 3g(x), तो 3g(x) सिंपल है, 3 और फंक्शन ऑफ x क्या है, x-4। सो 3x - 12, तो ये 3g(x) है। अब आपने क्या करना है, इसको दोनों को इक्वेट करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है, इसके राइट हैंड साइड को आपने इक्वेट करना है। सो f(x+5) = 3g(x), ये आपके को गिवन था यहाँ पर। तो दिस इज -13 -3x, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दें, इक्वल टू 3g(x) जो है वो 3x - 12 है। अब आपने इसको x को सब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। 3x, और इसको इधर उठा के शिफ्ट कर दें, -3x, और अगेन -3x इक्वल टू, ये उस तरफ जाके 13 -12, तो 13 - 12 = 1, और ये -6x, और x = -1/6। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। तो ये एक सिंपल फंक्शंस का क्वेश्चन था जो कि इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, जैसे और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं ताकि आप जो इसकी वर्किंग शो कर सकें। अच्छा, उसके बाद ये हम कर चुके थे। अब इसका बैक साइड अगर नेक्स्ट पे करेंगे। जी, ये एक सेट्स एंड वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि शेड द रिक्वायर्ड रीजन के है आपके पास A∩B' यूनियन B∩C'। तो पहले मैं जो है वो A∩B' करते हैं। B' में पहले B' मीन्स विदाउट B, तो विदाउट B अगर हम इसको शेड करते हैं तो ये आपके पास जो है वो पूरा रीजन विदाउट बी शेड होगा, और उसका एक साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो विदाउट बी ये पूरा आएगा, और ए के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ रीजन ए जो है वो हम यहाँ पे शेड कर देंगे।
ये आपके पास जस्ट ये पार्ट निकला ए इंटरसेक्शन बी प्राइम। अब कह रहे हैं कि बी इंटरसेक्शन सी प्राइम, तो सी को अगर हम माइनस कर दें पूरे को और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन बी के साथ लेते हैं तो हमारे पास ये वाला रीजन आ जाएगा। इसको मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको ताकि आप जो है इसको आइडिया कर सकें। ये आपके पास मैंने ब्लू कलर में ले लिया, ये हमारे पास दिस इज दी, ये वाला आपके पास हो गया। अब इन दोनों का यूनियन मीन्स ये टोटल ये सब कुछ जो है वो आपका ये कलर, ये और ये जो आपके पास है दिस इज दी ए इंटरसेक्शन बी प्राइम यूनियन बी इंटरसेक्शन सी प्राइम। तो ये आपके पास है सी प्राइम मीन्स विदाउट सी, बी प्राइम मीन्स विदाउट बी, और यूनियन मीन्स यू हैव टू कंबाइन बोथ द रीजन। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। द बोथ शेडेड रीजन इज इंक्लूडेड इन योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वन मॉर्निंग 50 people visit our library. 35 of them borrow a book, 12 of them use a computer, 8 of them do not borrow a book, do not use a computer. तो मॉर्निंग में लाइब्रेरी जाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बहरहाल ये क्वेश्चन है, हम इसके रिस्पेक्ट से देखते हैं। अगर हम इन सबको सम करते हैं तो दैट इज ग्रेटर देन 50, इट मींस वी हैव अ ओवरलैपिंग सेट। यानी कुछ ऐसे लोग होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, जो पीपल होंगे जो अ, आपका कंप्यूटर भी यूज़ किया उन्होंने और बुक्स भी बोरो की हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक डायग्राम बनाता हूँ जैसे लाइक ए यूनिवर्सल सेट, ये इसके अंदर आपके पास 50 पीपल हैं और एक सबसेट हम ड्रॉ करते हैं फॉर बुक, बी फॉर बुक, और एक चूंकि ओवरलैपिंग सेट है सी फॉर कंप्यूटर, और 8 of them do not borrow a book and do not use a computer, so we can write 8 this side inside the, इसको मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, ये 8 आपके पास जो है डू नॉट। अच्छा, अब ऐसे केस में अगर कुछ कॉमन है तो हम पहले सेंटर वाले को, कॉमन रीजन एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक्स इस साइड पर भी है, एक्स इस साइड पर भी है, यानी एक्स वो पर्सन है, वो लोग हैं जिन्होंने बुक्स भी बोरो की हैं और कंप्यूटर भी यूज़ किया है। ठीक है, तो हमें यही मालूम करना, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज आ कंप्यूटर, सिर्फ ये वाला पोर्शन हमें मालूम करना है। तो अगर बुक के रिस्पेक्ट से करते हैं तो इसे हम लिखेंगे 35 माइनस एक्स, और अगर हम कंप्यूटर के रिस्पेक्ट से लिखते हैं तो इसे लिखेंगे 12 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं अगर, तो 35 माइनस एक्स प्लस एक्स, दिस वन, एंड प्लस 12 माइनस एक्स, दिस वन। तो ये तीनों आपने यूज कर लिया, और प्लस 8 इक्वल टू टोटल 50। पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स विल बी कैंसिल। अब इन सबको ऐड कर सकते हैं, 35 माइ प्लस 12 47, 47 प्लस 8 इक्वल टू 55। तो माइनस एक्स और प्लस 55 इक्वल टू 50। 50 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, माइनस एक्स इक्वल टू 50 माइनस 55। सो माइनस एक्स इक्वल टू -5, ये माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू 5। लेकिन आपसे पूछा जा रहा हु यूज अ कंप्यूटर ओनली, बट कंप्यूटर ओनली बट कंप्यूटर बट डू नॉट, तो हमें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर कितने लोग यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं 12 माइनस एक्स और 12 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 7। राइट, सो ये भी कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इसको भी हम जो है
इस जैसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जो है हम जो है इसको आसानी से पूरे नंबर ले सकते हैं। अच्छा, एक ये है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। बाज़ाहिर बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन 4 नंबर है। डेफिनेटली कि ये क्वाड्रेटिक बनेगा और उसके 2 वैल्यूज आएंगी। अब देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होगा इसमें, या इस पे जो है आपका फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट। सो 5x इक्वल टू x+4 लिख लें एक ब्रैकेट में, और एक में x-3। सो 5x इक्वल टू, इसको x से x मल्टीप्लाई करें, x², फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करें, -3x, 4 को x से मल्टीप्लाई करें, 4x, और 4 को माइनस प्लस माइनस, 4 3 = 12, राइट। x² -3 + 4 + x -12, और ये इस तरफ 5x है। इसको भी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, x² + x, और ये -5x और -12, और इक्वल टू, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो 0। सो x² -4x और -12 = 0। ठीक है, तो अब 12 1 ज़ा 12, मिडिल टर्म तो ब्रेक नहीं हो सकता, इसे फैक्टर्स नहीं बना सकते हैं। सो हेयर a = 1, b = -4, and c = -12. So apply the quadratic formula. X = -b plus minus √b² -4ac/2a. So x = minus and -4 plus minus -4 of -4 -4, a = 1 and c = -12 upon 2, a = 1. So minus minus +4 plus minus 4 का स्क्वायर 16, -4 स्क्वायर = +16, माइनस माइनस प्लस 12 4 ज़ा 48/2। सो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x = 4 ± 64, और ये 8 और 6 14, that is equal to 64। ठीक है, √64/2, and you know that √64 = 8/2, और x = 8 14 5 6 6। अब इसको हम 4 + 8 / 2, और 4 - 8 / 2। So x = 12/2, 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा sorry 4 + 8, 4 + 8 12, 12 / 2, और इसी तरह से x = -4 / 2। सो x = 6, और ये यहाँ पर जो है x = -2। सो मैंने कहा था कि फैक्टर्स नहीं बन रहे, लेकिन इसके फैक्टर्स बन रहे होंगे यकीनन। हम इसको दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, ये वाली। ठीक है, तो 4 12 1 ज़ा 12, और 6 2 ज़ा 12। तो अगर हम फैक्टर से इसको सॉल्व करें, तो ये आसानी से मैंने क्वाड्रेटिक से कर दिया है 4 नंबर को देखते हुए, लेकिन ये फैक्टर्स भी बन रहे थे। फैक्टर्स से भी कर देता हूँ। x² -4x -12 = 0। सो x², 12 1 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो -6x और +2x -12 = 0। तो ये हम आसानी से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। x कॉमन ले लें, x -6
+2 कॉमन ले लें, x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो x माइनस 6 एंड देन रिमेनिंग टर्म x और यहाँ से +2 इक्वल टू 0, और x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x +2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू +6 और x इक्वल टू -2। तो आप इससे भी कर सकते हैं, तो वी विल गेट द सेम आंसर। तो 4 नंबर के ये क्वेश्चन थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक रही आपके पास है लास्ट क्वेश्चन, इसको भी हम देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली डायरेक्ट के प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का एक सिंगल क्वेश्चन आता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दोनों कंबाइन किया हुआ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी दिया हुआ है और इनवर्स प्रोपोर्शन भी दिया गया है, और उसके बाद कह रहे हैं फाइंड वाई इन टर्म ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारी लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सो इसको हम जब सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डब्ल्यू स्क्वेयर। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डब्ल्यू स्क्वेयर, और y इक्वल टू k टाइम डब्ल्यू स्क्वेयर। अच्छा, इसमें हमारे पास y की वैल्यू गिवन है और w गिवन है फॉर k। हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम जो है वो k की वैल्यू निकालेंगे। सो y क्या आपके पास है, y इक्वल टू 5, k एज इट इज, एंड w इक्वल टू 10 स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू 100। तो 5/100 इक्वल टू k, और k इक्वल टू 1/20। 5 1 5, 5 20 100, तो 1/20। अब इस k को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें। सो y इक्वल टू 1/20 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू स्क्वेयर, और आप इसे लिख सकते हैं, इसे आप यहाँ पे इसको स्टॉप कर दें, y इक्वल टू W²/20 करके आप इसे अभी यहाँ पे स्टॉप कर दें, इक्वेशन नंबर 2 दे दें, ताकि हम फर्दर यूज कर सकें। नाउ द सेकेंड कंडीशन, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू w। तो ये 1/w, और x इक्वल टू k टाइम w। अगेन k की वैल्यू निकालने के लिए इसे दे दें इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन नंबर 1 में w और x की वैल्यू पुट कर दें। तो 0.4 इक्वल टू k टाइम w इज 10, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 4 = 40। तो k इक्वल टू 40, एक पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो राइट हैंड साइड से पॉइंट के बाद एक नंबर पुट करेंगे, तो k इक्वल टू 4। अब इस k इक्वल टू 4 को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर किसमें, 3 में। ये 3 है, तो पुट इन इक्वेशन 3। सो x इक्वल टू 4.0 मीन्स 4/w। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक स्टेप और करें, w को सब्जेक्ट बनाएं, ताकि हम इस w की जगह इसकी x की वैल्यू पुट कर सकते। तो हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो wx इक्वल टू 4, और w इक्वल टू 4/x। अब इसे आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये है। तो y इक्वल टू w की जगह मैंने रख दिया 4/x का स्क्वेयर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1/20 मैंने अलग कर लिया। सो y इक्वल टू 4 का स्क्वेयर 16/x² मल्टीप्लाई बाय 1/20। Okay, just battery is going to battery is running low, तो मैं just 1 मिनट जरा सा इसको पावर कॉर्ड लगा दूँ इसका। Just wait 1 minute.